S. Chand presents educational video lectures. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Hello everyone, welcome to S. Chand Academy. We have gone through place of supply and we did up till section 12. Section 10 was done, section 11 was done, section 12 was done. And they were all relevant to section 10 and 12 were relevant to domestic transactions in case of goods and services respectively. Section 11 was talking about the international transaction basically of goods, imports and exports of goods. Right, and now we will go through the section 13, which is imports and exports of services. To get in-depth knowledge of various subjects in commerce, we recommend these books from S. Chand Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. Now, to start with section 13, we will look into section 13, subsection 3 to section 13, subsection 13, and there is general provision which was also there in section 12, which was talking about the general provision wherein, okay, I forgot to tell you in that video, but I'll tell you this, that wherein the location of recipient is registered, that place becomes the place of supply in general provision, and in case of location of recipient is not provided or not registered, in that case the location of supplier becomes the place of supply. So whether it be supplier of goods or supplier of services, both the cases. Now in section 13 subsection 2, again हम यहाँ पे imports और exports की बात कर रहे हैं, तो location of recipient of service, location of recipient becomes the place of supply. So let's say अगर कुछ हमने USA से services import करे हैं in Delhi, तो दिल्ली का जो रजिस्टर्ड पर्सन है दैट बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई, दिल्ली का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है दैट बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दैट केस. और इन केस अगर लोकेशन नहीं प्रोवाइडेड है, रजिस्टर्ड नहीं है वो पर्सन, देन हमें एक पॉइंट होगा जो हमें बताया जाएगा कि दिस इज लोकेशन ऑफ द सप्लायर, और उसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा हमारे कंट्री में, that particular location will become the location of supplier and location place of supply as well. Right? So location of supplier in Indian territory. तो हमारा कोई contact point होगा इंडिया में भी, that will becomes the location of the supplier, that becomes the place of supply in general provision. ठीक है, अब ये तो हो गया general provision. We will talk about the specific provision, which is, we'll start with section 13. Subsection 3. Now section 13 is again a general provision relevant to the performance of service, wherein the service is to be performed either remotely or service is to be performed using certain goods, or we perform services through presence, a physical presence of someone, right? So यहाँ पे section 13 subsection 3 will talk about all the three types of services being performed. Let's say, for example, there is a good which is required. Now good is used, good or a machine is used to perform a particular service. Let's say मुझे wall painting करानी है और वो टेक्नोलॉजी सिर्फ चाइना में है, और चाइना से मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ इंडिया के अंदर, और इंडिया में वो मशीन लाई जाएगी टू परफॉर्म दैट सर्विस इन माई होम, राइट, उस वॉल पे पेंटिंग करने के लिए, एंड देन दैट मशीन विल बी टेकन बैक. सो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ service performance, right, wherever the place of supply will be the location of service, wherever it will be performed, right. For example, मेरा घर दिल्ली में, और दिल्ली में मेरे घर के वॉल पे वो पेंटिंग होनी है, थ्रू दैट मशीन यूसेज ऑफ दैट गुड इज डन, दैट मशीन इज डन, राइट. उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच एक्चुअल परफॉर्मेंस. दूसरा, वी विल टॉक अबाउट जहाँ पे रिमोट लोकेशन से एक्सेस देके हम कई बार सर्विसेज लेते हैं. फॉर एग्जांपल वेरियस बीपीओ सर्विसेज,
राइट, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने BPO आउटसोर्स कर दिए हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहाँ पे अपना सर्विसेज को आउटसोर्स कर दिया है, और इंडियन पीपल आर सर्विंग टू US बेस्ड पीपल, राइट. सो US के लोग एज माइक्रोसॉफ्ट सर्विस सॉल्यूशंस कॉल करते हैं, एंड यहाँ पे बैठा बंदा बोलता है ठीक है, वी आर रिप्रेजेंटिंग माइक्रोसॉफ्ट एंड वी नीड सम सॉर्ट ऑफ access to your computer. Now that access is given to the remote person, or the remote person who is using a particular device. So remote access जिस particular device के through मिला है, right? So location of, basically उस case में the location of service will be the location of goods at the time of supply of service, right? So जहाँ पे भी वो particular good use किया गया है as for remote locations, that place will be the place of supply. And then there is a third category which is also called जहाँ पे physical presence is required for a particular person. For example, there are beautician services. Let's say there is a modeling agency USA का, right, and उन्होंने दिल्ली में कुछ modeling event है, तो उन्होंने दिल्ली में आके एक VLCC से ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज ले लिए. अब ऑब्वियसली ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, क्योंकि US बेस्ड कंपनी है, मॉडलिंग कंपनी, उसने VLCC से दिल्ली बेस्ड कंपनी से ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज मांग रहे हैं. तो उस केस में अब देखो, हम बाहर तो हमारा GST एप्लीकेबल है नहीं, आउटसाइड इंडियन बाउंड्रीज, तो हम क्या करते हैं, हम इनसाइड द इंडियन बाउंड्रीज जो भी लोकेशन है जहाँ पे वो परफॉर्म की जाएंगी सच सर्विसेज, जहाँ पे उनके मॉडल्स को ग्रूम किया जाएगा, that particular place becomes the place of supply, and it can be multiple states also within the territory of India. So modeling services के लिए जो beauty treatment services हैं, वो हो सकता है कि हमें दिल्ली में लेनी पड़े, हो सकता है हम चेन्नई में ले रहे हो सकता है पंजाब में ले रहे हो, तो all those states pertaining to such value जो हम पहले भी करते आए हैं, right. But यहाँ पे export of service के केस में it is very clear कि location wherever the services are actually performed, right. So यहाँ clear है ये section 13 subsection 3. Now talking about section 13 subsection 4, wherein it is talking about immovable property, services in relation to or ancillary to immovable property, right, and wherein all such services like lodging, accommodation, expert service, right, all those services relevant to expert opinion, or sometimes we take services from advocates, we take services from other people, right, and there is immovable property involved over there. सो यहाँ पे एकदम क्लियर है, सेक्शन 12 जैसे लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी था वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, वैसे ही सेक्शन 13 में सब सेक्शन 4 में वेयर इन सर्विसेज परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेलेवेंट सर्विसेज कौन से हो सकते हैं, कि हमने लीगैलिटी चेक करनी, क्या हमारा घर या ऑफिस बनाना इस लोकेशन पे ठीक रहेगा, तो हमने एडवोकेट से सर्विसेज ली. फिर हमने पूछा कि आर्किटेक्ट से कि हमारे मकान का व्यू कैसा रहेगा, किस तरह से बनाना है उसको, तो आर्किटेक्चरल सर्विसेज हमने ले ली. तो ये हो गई एक्सपर्ट सर्विसेज. या फिर हमने लॉजिंग और अकोमोडेशन बेस्ड सर्विसेज ले लिए. सो इन ऑल सच सर्विसेज लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी और वेयर एवर इट इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड. सो आर्किटेक्चर के लिए तो अभी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो एग्जिस्टेंस में आने के लिए एक जगह पे जहाँ पे उन्होंने इंटेंशन है उनका कि उसको वहाँ बनाना है, दैट पर्टिकुलर प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट. सो इंटेंशन और द इंटेंडेड प्लेस और द लोकेशन ऑफ द location of supply of service will be the place of supply in that case. Location of immovable property will be the place of supply. Right? Now, talking about section 13, subsection 5. Now, section 13, subsection 5 is talking about basically the services related to admission or organizing of any event, right? Or any services ancillary to such event. Now, in that case, it is very clear that when you're talking about any event जहाँ पे organization of a particular event, let's say शादी या कहीं पे, हमने आपसे बात भी करी थी सेक्शन 12 में भी कि विराट कोहली का एग्जांपल यूज़ किया था कि विराट कोहली ने अगर सर्विसेज ली किसी आउटसाइड एजेंसी से जिसने उनके शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया इटली के अंदर, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट? सो इट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच इवेंट
right, wherever the event is being organized or it is actually held. So उस केस में Italy will be the place of supply, right? But यहाँ पे address on record, Virat Kohli is the client, उनका address on record will be the registered place, or if it is not registered then place of supply still is Italy in that case. So export of services के केस में, import of services के केस में, export of services के केस में क्या होगा कि हमने कोई आउटसाइड पीपल को अपने कंट्री से, आगरा में सपोज वो करना चाहते थे डेस्टिनेशन वेडिंग, वो आए आगरा में और आगरा में शादी ऑर्गेनाइज करी किसी पर्टिकुलर एजेंसी ने, और उस एजेंसी ने उस क्लाइंट का यहाँ का लोकल एड्रेस या लोकल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पूछा, राइट, एंड उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर इट इज़ हेल्ड, वेयर सच इवेंट इज held. That is section 13 subsection 5, which is talking about organizing of some event, organizing of some event, either it will be social or educational event, तो इन इस केस में एकदम क्लियर है कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, और प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन एट विच सच इवेंट इज हेल्ड, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट. सो नेक्स्ट इज सेक्शन 13 सबसेक्शन 6, which is talking about the services being performed internationally, as well as there is one location in that service which is in the taxable territory. Now let's say मैंने ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज लिए दुबई बेस्ड एक कंपनी से, और उसका एक ऑफिस इंडिया में भी है, एंड दुबई में 60% सर्विस परफॉर्म हुए इन दुबई एंड 40% सर्विस परफॉर्म हुए हैं इन दिल्ली. लेट्स से 40% सर्विस हुए हैं परफॉर्म दिल्ली में. तो इस केस में द कंप्लीट POS फॉर 100% सर्विसेज विल बी दिल्ली. अब अगर आपको कोई पूछता है कि भाई ऐसे ऐसे सर्विसेज किसी कंपनी ने दिए हैं, और वो कंपनी ने सर्विसेज में 40% जो वैल्यू के सर्विसेज थे वो दिए USA में, 30% दुबई में, एंड उसमें से 30% जो बचा वो दिल्ली में दे दिया, तो दिल्ली है टैक्सेबल टेरिटरी में, राइट. सो जो भी सिटी या स्टेट टैक्सेबल टेरिटरी में फॉल करेगा, it will denote 100% value of the such transaction to that particular state. It will become place of supply in that case. So that is 13 subsection 6, wherein services are performed or are given in one of the taxable territories. ठीक है. Now let's say there are cases where services will be performed in more than one taxable territory. Now 13 subsection 7, जहाँ पे services will be performed in more than one taxable territory. सो फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था दुबई का, उसमें 60% जो परफॉर्मेंस थी वो लेट्स से सर्विस का ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज 60% दुबई में हो गया, राइट, एंड रिमेनिंग 40% में से 20% हुआ दिल्ली में और 20% हुआ मुंबई में. अब तो 2 टैक्सेबल टेरिटरी आ गए यहाँ पे, है ना. तो 2 टैक्सेबल टेरिटरी के केस में अब क्या होगा, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि हमें इंडियन टेरिटरी ढूंढनी है. तो हमारे पास 2 टैक्सेबल टेरिटरी है, अब उनका वैल्यू जिस प्रोपोर्शन में उनके पास सर्विसेज वैल्यू परफॉर्म हुई है उसी प्रोपोर्शन में वो भी डिवाइड हो जाएगा, दुबई का 60% भी. तो लेट्स से 2020 यानी कि 50-50% दोनों ने सर्विसेज परफॉर्म करे, यहाँ पे दोनों स्टेट्स में परफॉर्म हुए. तो रिमेनिंग जो 60% वैल्यू है इट विल बी डिनोटेड और इट विल बी डिवाइडेड फॉर दिल्ली एंड मुंबई इक्वली, राइट. यानी कि लेट्स से 1 लाख रुपए की वैल्यू के सर्विसेज परफॉर्म होने थे, जिसमें से 60,000 रुपए की वैल्यू के सर्विसेज दुबई में परफॉर्म हो गए, 20,000 के दिल्ली में हो गए, 20,000 के मुंबई में हो गए. अब उस 60,000 का डिनोशन होगा इस तरह से कि 30,000 विल बी डिनोटेड टू दिल्ली, ठीक है, 30K, और 30K विल बी डिनोटेड टू मुंबई एज वेल, राइट. तो मोर देन 1 टैक्सेबल टेरिटरी का केस है ये, है ना. सो सिमिलरली
we move to another subsection, that is 13 subsection 8, basically services relevant to banking, intermediary और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट. इंटरमीडियरी है, बैंकिंग है, राइट. इस केस में व्हाट विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई. अब हमने एक चीज़ तो क्लियर है कि देखो, या तो कोई फॉरेनर किसी बैंकिंग सर्विस को यूज़ करना चाहता है, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग सर्विसेज आइदर एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से, या फिर हम बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हैं किसी और कंट्री से, राइट. तो उस केस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट intermediary services. We were also add one more thing, that is transport hiring services. And transport hiring services का मतलब है जैसे कोई गाड़ी कोई रेंट पे लेता है फॉर 1 मंथ, है ना. अगर 1 मंथ के ऊपर होगा तो उसका पीरियड विल बी डिसाइडेड जनरली, मतलब अगर 1 मंथ के ऊपर का पीरियड जाता है तो द जनरल प्रोविजंस विल प्रिवेल. यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बिकम दी सप्लायर्स प्लेस, राइट. यहाँ पे रेसिपिएंट का प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगा. और 1 मंथ के ऊपर का टाइम पीरियड के लिए गाड़ी रेंट पे ली गई या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट हायरिंग एक्टिविटी हुई है. बट अगर 1 महीने के अंदर का है, उस केस में द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ द क्लाइंट आइदर और द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट हायरिंग. नाउ इन केस ऑफ बैंकिंग एंड इंटरमीडियरी, फॉर एग्जांपल इंटरमीडियरी की बात कर लेते हैं. बैंकिंग के केस में तो एकदम क्लियर है कि बैंक में एक एड्रेस प्रोवाइड किया होगा अकाउंट होल्डर ने, राइट. दैट प्लेस विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड लेट्स से कोई फॉरेनर है, कोई इंडियन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका, और उधर से उसने प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्टर करी है अपनी, राइट. या फिर कोई बिजनेस कर रहा है आके इंडिया में, और वो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई अपना एक होम एड्रेस देता है इंडिया के अंदर, इंडियन टेरिटरी में, दैट विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर हिम, राइट. एंड नाउ इंटरमीडियरी की बात करते हैं. एक बंदा लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बंदा ले लेते हैं ए एग्जाम्पल के तौर पे, जो सप्लाई ऑफ गुड्स करता है टू अ कंपनी, जॉनसन्स एंड कंपनी ले लेते हैं, राइट. जॉनसन्स एंड कंपनी जो फॉरेन कंपनी है, राइट. और वो उसको गुड्स सप्लाई करता है, फॉर एग्जांपल बीइंग एन एजेंट, वो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है और उसको गुड्स सप्लाई कर रहा है. तो उस केस में ये बन जाता है सप्लायर, ए बन जाता है सप्लायर. सो सप्लाई ऑफ इंटरमीडियरी सर्विसेज कर रहा है ये, राइट. उस केस में द लोकेशन of supplier becomes the place of supply. Location of supplier becomes the place of supply. That is Mr. A का location जो होगा, registered location होगा, वो place of supply बन जाएगा, being the supplier of goods or services whatever they are. और services majorly we are talking about here. So services. So supplier यहाँ पे supplying जो agent की services दे रहा है, उस वजह से उसका place will become the place of supply. Now moving to Section 13, subsection 9 talks about the services relevant to transportation of goods other than transportation through mail or courier. So आपको यहाँ पे मेल और कोरियर छोड़ के आप किसी भी वे से ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो गुड्स, वो सर्विस की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है कोई, जो एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, कोई बी कंपनी बी मान लेते हैं, ठीक है. उससे बोलते हैं कि मेरे गुड्स को आपको एक लोकेशन पे भेजना है जर्मनी में, दैट इज सी, ठीक है, सी में भेजना है. तो अब ए जो है वो इंडिया से है, ठीक, बी जो है वो यूएसए से है, और सी जो है हमारे वो जर्मनी है, लोकेशन है, दैट इज द डेस्टिनेशन ऑल्सो. सो इस केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट, इट विल बी द डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, राइट. सो इट विल बी जर्मनी, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज सी. क्लियर है. 13 सबसेक्शन 9. अगर आपको कोई पूछता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर, देन इन दैट केस कोई भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी या फिर कोई ट्रक एजेंसी या कोई भी शिपिंग एजेंसी अगर उन गुड्स को लेके जाती है, उस केस में क्लाइंट रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है कोई फ़र्क नहीं पड़ता.
you need to see the destination of goods, that will be the place of supply, that is Germany here in the example. So 13 subsection 9 is clear, I hope, right? Moving to section 13 subsection 10, which is talking about again passenger transportation services. ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये सेक्शन 12 में भी था अगर आपको याद हो, राइट? बट पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में हमने तब भी बात करी थी, तब भी एम्बार्केशन की बात कर रहे थे। अभी भी मैं यही बोलूंगा कि फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, देन गोइंग टू लखनऊ, देन गोइंग टू दुबई, देन गोइंग टू यूएसए, अगर उस फ्लाइट में आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, दिल्ली से जा रही है लखनऊ, लखनऊ से जा रही है दुबई, दुबई से जा रही है यूएसए, आपका डेस्टिनेशन चाहे कुछ भी हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो लखनऊ हो, आप जहां से एम्बार्क करेंगे, लेट्स से कुछ लोगों ने एम्बार्क किया लखनऊ से, ठीक है, कुछ लोगों ने दिल्ली से किया, कुछ लोगों ने दुबई से किया, एंड अल्टीमेटली इट रीच टू यूएसए। तो इन तीनों जगह से जहां से जिसने जिसने एम्बार्केशन किया यानी कि फ्लाइट पकड़ी है, दैट प्लेस फॉर देम बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। दिल्ली के लिए जो दिल्ली से एम्बार्क करा उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई इज दिल्ली, जिसने दुबई से एम्बार्क किया उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई इज दुबई, एंड उसने फ्लाइट हो सकता है इंडियन फ्लाइट बुक करी हो, राइट? सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर है। लखनऊ के केस में अगर लखनऊ से एम्बार्क कर रहा है तो लखनऊ, दिल्ली के एम्बार्क कर रहा है तो दिल्ली, और दुबई से एम्बार्क कर रहा है तो दुबई, राइट? सो दिस इज सेक्शन 13 सब सेक्शन 10, राइट? नाउ वी विल talk about section 13 subsection 11. It talks about the services relevant to onboard conveyance services. अब ये एग्जाम्पल याद होगा आपको सेक्शन 12 वाला कि जहाँ पे सर्विसेज ऑनबोर्ड मिल रही थी डोमेस्टिकली, सो इंटरनेशनली भी जो भी सर्विसेज है, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ डिपार्चर से मिल रही हो आपको, डजेंट मैटर, first scheduled point of departure will become the place of supply of such continuous journey. First scheduled point of departure of such vehicle, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे कुछ भी हो, राइट? फर्स्ट scheduled point of departure, चाहे वो दिल्ली से चल रही है या मुंबई से चल रही है, जहाँ से भी चल रही है, that becomes the place of supply of service, उस केस में इंटरनेशनली भी, right? Then section 13 subsection 12 talks about section 13 subsection 12 talks about services relevant to online information data access retrieval services, OIDAR services, right? अब ये सर्विसेज कौन से होते हैं? जैसे कि हम YouTube पे इंफॉर्मेशन देखते हैं तो हम YouTube पे भी अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं, है ना? सिमिलरली हम जो भी सर्विसेज ऑनलाइन, हम किसी से डेटा खरीद रहे हैं, डेटा बेच रहे हैं, बिजनेस करते हैं ऐसा, राइट? ऑल सच इन्फॉर्मेशन, उसके लिए जो भी हम पेमेंट क्राइटेरियाज यूज़ करते हैं, पेमेंट मोड्स यूज़ करते हैं, लेट्स से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, या फिर हमने ऑनलाइन किसी फ़ोन पे या UPI से पेमेंट कर दिया, या किसी भी ऐप के थ्रू जब पेमेंट किया, सो प्लेस ऑफ सप्लाई उसमें जो भी एड्रेस आप जिस मोड ऑफ पेमेंट यूज़ कर रहे हो, सपोज मोड ऑफ पेमेंट आप बैंक का क्रेडिट कार्ड कर रहे हो या फिर आप जो भी डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, उस बैंक का एड्रेस जो आपने प्रोवाइड कर रखा है, ऑन रिकॉर्ड जो एड्रेस है, दैट बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट? दैट बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, अगर रजिस्टर्ड नहीं है आप अंडर GST, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं अंडर GST तो फिर ऑब्वियसली रजिस्टर्ड प्लेस जो GST के अंदर है will become the place of supply in that case. Section 13 subsection 12 clear है? Section 13 subsection 12 हो गया आपका, right? Section 13 subsection 13 again, right? Section 13 subsection 13. अब ये किस बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि जो भी डबल टैक्सेशन की बात करते हैं, राइट? मान लेते हैं हम किसी कंट्री गए हुए हैं एज टूरिस्ट, और वहाँ पे क्योंकि हम पे टैक्स चार्ज होगा उनके कंट्री के हिसाब से, और हम फिर इंडिया में आते हैं और फिर हम पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ और ये सब लगे, तो उससे अच्छा है कि डबल टैक्सेशन को कैंसिल करा जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट एट
some point of time may give notifications कि भाई place of supply क्या होगा, so that एक person वहाँ पे भी टैक्स पे कर दे और यहाँ पे भी टैक्स कर दे, ऐसा ना हो, वो सिंपली बच सके उस चीज़ से. इसलिए डबल टैक्सेशन वाला कंसेप्ट, इट इज़ टू बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट टाइम टू टाइम. ठीक है, आई एम टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक, बट वी हैव गॉन थ्रू सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 तक, and we have also gone through subsection 2 of 13 in this video, right, of place of supply of services internationally for imports and exports of services. And इसके बाद हम सेक्शन 14 इसमें नहीं करेंगे, that is not important because OIDAR और उन्हीं सर्विसेज से relevant बात कर रहे हैं, it is not relevant for your knowledge, right. We will start with time supply after the break. Now quality learning is easily available at your doorstep. S. Chand Academy brings detailed lectures based on UGC curriculum as per the New Education Policy 2020. So do not forget to subscribe to the S. Chand Academy and access the wide world of knowledge conveniently sitting within the comfort of your home. Stay connected and keep watching S. Chand Academy. Happy learning! Welcome back to S. Chand Academy. Before the break, we have gone through the place of supply, section 13, which was talking about the imports and exports of place of supply. What should be the location, what should be the place of supply in that case, right? And now we will look into the time of supply part. Now, time of supply is what? Time of supply is basically the point of time when the supply was made, when the supply of goods or services was made. Why it is required to be known? Because the seller of goods or services may know about the exact due date of the taxes for a particular transaction which have occurred from their business, right? So for that reason, they need to know about the time of supply part. Now, for why it is required for them? Because there are quarterly returns, there are monthly returns to be filed by a particular seller for GST, and to file that return, they need to know the time of supply in that case. Now, time of supply, हम यहाँ पे तीन चीज़ें पढ़ेंगे. One will be time of supply in case of goods, time of supply in case of services, and time of supply in case of reverse charge mechanism. ठीक है, reverse charge mechanism. Now, in case of goods, it is very clear that there are in case of goods, there are 2 to 3 things which should be known, right? There are 2 to 3 things which should be known. One is that you should know the issue date of invoice. Issue date of invoice. 1. Second is we should know the date on which goods were delivered, and the third date is the date of payment or advances. Now, for advances purposes, there is no GST leviable on advances. If, let's say, during the time of invoice you are paying some advance, in that case उधर पे GST applicable होगा, right? And वो advance के amount का GST apply करके दिया जाएगा, and GST का बिल उस तरह से बनेगा, right? अगर 50,000 का advance पे किया है on 1 लाख रुपये ट्रांजैक्शन, तो 50,000 का अगर बिल जनरेट करा जा रहा है, अगर सिर्फ आपने इनफॉर्मली 50,000 दे दिए हैं आउट ऑफ 1 लाख रुपये ट्रांजैक्शन और उसको एडवांस बोल रहे हैं आप, तो वो एडवांस का GST जनरेट नहीं होगा, एंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल पर्टेन टू एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर कि वो अगले बिल में एडजस्ट करेगा या पिछले बिल में एडजस्ट करेगा, राइट? सो ये तीन में से जो भी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग होगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हम कंसिडर करें, लेट्स से मिस्टर ए है कोई, वो 1 लाख रुपए की गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है? अब या तो वो 1 लाख पूरा पे कर दें और
1 जनवरी को उन्होंने गुड्स खरीदे, ठीक है। तो 1 जनवरी को गुड्स खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए का, और उन्होंने पेमेंट 1 लाख पूरी कर दी है, और 1 जनवरी को ही कर दी उन्होंने। इनवॉइस उसका इशू हो गया है 1 जनवरी को, 1 जनवरी को इनवॉइस इशू हो गया, राइट। और उसके बाद उसका जो गुड्स डिलीवरी है वो हो रहा है 20 जनवरी को, राइट, जो गुड्स डिलीवरी है। और थर्ड है वो पेमेंट कर रहे हैं लेट्स से 1 फेब को। तो अभी 1 लाख जो अमाउंट है उसका वर्थ का गुड्स उन्होंने इशू करा ले लिया है, उसका इनवॉइस इशू हो रहा है 1 जनवरी को, गुड्स जो डिलीवर हो रहे हैं वो 20 जनवरी को हो रहे हैं, पेमेंट हो रहा है 1 फेब को। तो इन तीनों में से अगर हम देखेंगे तो फिर 1 जनवरी इज़ द डेट जो हमें अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग लग रही है। बट हम एक चीज़ और चेक करेंगे कि व्हेन शुड हैव बीन द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, राइट, व्हेन शुड हैव बीन द इनवॉइस इशूड, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने इनवॉइस कब इशू होना चाहिए, इनवॉइस इशू होना चाहिए जब गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, गुड्स रिमूव हो रहे हो किसी गोडाउन से सेलिंग पर्पज से, राइट। तो अगर हमने गुड्स उठाए 20 जनवरी को एज बायर एज रेसिपिएंट, तो वो 20 जनवरी जो डेट है दैट बिकम्स योर 20th January becomes your the goods delivery date also, as well as the invoice which should have been issued. अब क्योंकि इनवॉइस इशू हो गया 1 जनवरी को ही, राइट, और इनवॉइस इशू कब तक होना चाहिए था, गुड्स के केस में इट इज 30 डेज फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ गुड्स, एंड इन केस ऑफ सर्विसेज इट इज 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। नाउ 30 डेज अगर हम काउंट करें गुड्स की डिलीवरी से 20th जनवरी से, मतलब हम 20th फेब तक जाएंगे, राइट, एंड बल्कि पेमेंट हो गया है 1 फेब को ही, राइट। तो 20th फेब भी इरेलेवेंट हो गया, फिर केवल क्या इरेलेवेंट रह गया 1 जनवरी। सो टाइम ऑफ सप्लाई बिकम्स 1 जनवरी इन दिस केस, राइट। 1 जनवरी बिकम्स द टाइम ऑफ सप्लाई बिकॉज अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग में से 1 जनवरी इज द अर्लियर जिसमें इशू इनवॉइस हुआ है, राइट। सो दिस इज द केस ऑफ गुड्स। नाउ टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ सर्विसेज सी पेमेंट डेट भी देखनी है हमें, राइट, बट पेमेंट डेट यहाँ पे ना थोड़ा सा 15/11/2017 से पेमेंट जो है, पेमेंट डेट जो है वो मैटर नहीं करता, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट। सो इट इज़ इररेलेवेंट, बट 15/11/2017 से पहले रेलेवेंट था, पेमेंट भी देखना पड़ता था, पेमेंट डेट कब आए, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इशू ऑफ इनवॉइस डेट, इशू ऑफ इनवॉइस डेट इन केस ऑफ सर्विसेज। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हेन शुड हैव बीन द इनवॉइस इशूड। तो इनवॉइस लेट्स से मैंने आपको बताया कि जब सर्विस परफॉर्म हो गई उसके 60 डेज में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर 1 जनवरी को हमने सर्विसेज स्टार्ट करवाई और सर्विस परफॉर्म हो गई 20 जनवरी तक, 20th जनवरी तक सर्विसेज परफॉर्म हो गई थी, राइट। इनवॉइस इशू हुआ 30th जैन को, इनवॉइस इशू हुआ कब, 30th जैन को, और इट शुड हैव बीन इशूड कब, इट शुड हैव बीन इशूड आफ्टर 6 और बिफोर 60 डेज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। सो 20th जनवरी से 60 डेज हो गए, 20th फेब, 20th मार्च। So 20th March is the last date. 20th March is the last date of issue of invoice. तो अब इशू ऑफ इनवॉइस का तो हमें एकदम क्लैरिटी है कि एक तो इन्होंने कर ही दिया इशू ऑफ इनवॉइस 30th जैन को, राइट। और अगर बाई चांस यहाँ ना होता, मान लेते हैं मई में करते ये कहीं, मई में इशू करते हैं इनवॉइस, राइट, मई और अप्रैल मान लेते हैं, अप्रैल में इशू करते हैं इनवॉइस, तब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता। तो टाइम ऑफ सप्लाई उस केस में ये डेट बन जाता क्योंकि इट शुड हैव बीन इशूड बाय 20th ऑफ मार्च। लास्ट डेट क्या होता, 20th ऑफ मार्च। सो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग में इशू ऑफ इनवॉइस डेट और व्हेन इट शुड हैव बीन इशूड, द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, क्योंकि वो डिलीवरी ऑफ सर्विस से 60 दिन, तो 60 दिन हमें क्लियर है, 20th मार्च है, तो 20th मार्च विल बिकम द टाइम ऑफ सप्लाई हियर, राइट, ऑफ सर्विसेज। एंड क्योंकि इनवॉइस इशू होना चाहिए था इस डेट तक, इसलिए,
नहीं तो अगर सर्विस परफॉर्म हो गई है, सर्विस इशू हो गई है, राइट, उस दिन ही पेमेंट हो जाए और इनवॉइस भी इशू हो जाए, दैट इज़ फाइन। अगर नहीं होता है तो 60 डेज फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस विल बी कंसिडर्ड द डेट, एंड उन दोनों में कंपैरिजन होगा, इशू ऑफ इनवॉइस डेट और द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। दोनों में से जो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग दैट विल बिकम द टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। नाउ in case of time of supply under reverse charge, now talking about the time of supply under reverse charge, so reverse charge समझ लेते हैं क्या है। reverse charge is basically जब recipient को टैक्स पे करना पड़े इन केस जब सप्लायर हमारा जब रजिस्टर्ड नहीं है। एंड बहुत सारे ऐसे सिचुएशन मिलेंगे जहाँ पे पेटी गुड्स के सप्लायर्स होते हैं जो 20 लाख या 40 लाख का टर्नओवर जो लिमिट है रजिस्ट्रेशन का वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में रजिस्ट्रेशन का लिमिट पूरा नहीं हो पाया इसलिए वो रजिस्टर ही नहीं करते हैं, टर्नओवर नहीं क्रॉस कर पाए 40 लाख का, इसलिए वो रजिस्टर नहीं करते हैं बीइंग इन द नॉर्मल कैटेगरी स्टेट। तो उस केस में क्या होगा कि रिवर्स चार्ज के अंडर रेसिपिएंट विल पे द टैक्स, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नाउ रिवर्स चार्ज केस में कौन इंपॉर्टेंट है? रेसिपिएंट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमें इसमें भी कुछ डेट्स देखनी होंगी कि कब गुड्स रिसीव हुए या सर्विसेज रिसीव हुए रेसिपिएंट को, राइट। गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड, और कब आपके इशू ऑफ इनवॉइस हुआ है उस केस में, राइट। सो हम ये भी देखेंगे। सो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज ऑल्सो इट इज़ वेरी क्लियर। हम इशू ऑफ इनवॉइस देखेंगे, इशू ऑफ इनवॉइस डेट, राइट। वैसे तो हम ये नहीं देखते हैं बट अगेन इशू ऑफ इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट। ना पेमेंट डेट आपको मैंने बताया कि 15/11/2017 से इररिलेवेंट हो गया है, तो इशू ऑफ इनवॉइस डेट ही हमारे पास बचता है। अब या तो हमने एक्चुअल इशू ऑफ इनवॉइस डेट हमें पता है, राइट, या फिर हमें ये पता है कि कितने दिन में इसका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज कंसिडर्ड लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब ये हम क्लियर कर चुके हैं कि इन गुड्स केस इट इज़ 30 डेज और इन सर्विसेज केस इट इज़ 60 डेज। तो अब अगर हम सर्विसेज की बात करें रिवर्स चार्ज में, लेट्स से कोई डायरेक्टर के सर्विसेज हैं जो एक कंपनी ने लिए हैं और 50,000 वर्थ का सर्विसेज लिया और 50,000 का सर्विसेज में 15 जनवरी को लेट्स से उसने सर्विस देना स्टार्ट किया और उस दिन इशू ऑफ इनवॉइस हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ लेट्स से, बट उसके सर्विसेज जो है वो हमारे 1 फेब को पेमेंट हो गया उसका, राइट। 1 फेब को पेमेंट हो गया और पेमेंट होने के बाद अब इशू कब तक हो जाना चाहिए था इनवॉइस पेमेंट के बाद? 60 डेज में, क्योंकि उसने सर्विस परफॉर्म कर दिया था इसीलिए तो पेमेंट किया लॉजिकली। तो जब 60 डेज यानी कि अगर हम बात करें 15 जनवरी से लेके 15 फेब 15 मार्च शुड हैव बीन द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज। 15 मार्च तब वो डेट हो जाएगी इशू ऑफ इनवॉइस अगर इशू ऑफ इनवॉइस डेट हमें गिवन नहीं है, राइट। बट हमें पता है कि सर्विस डिलीवरी कब हो रही है। तो सर्विस डिलीवरी के 60 डेज में इन केस ऑफ सर्विसेज इट इज 15 मार्च, अगर इन केस ऑफ गुड्स होता तो 30 डेज, तो यानी कि 15 फेब हो जाता वो डेट। तो इशू ऑफ इनवॉइस हमें पता नहीं है, तो उस केस में जो भी लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड इन केस ऑफ सर्विसेज इट विल बी 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ सच सर्विस will be the time of supply. So that is it about time of supply. We are done with the place of supply, section 13 in this video. We have gone through the time of supply in various modes like in goods, in services, and in case of reverse charge mechanism. So we will continue with value of supply in next video. Thank you till then. To get in-depth knowledge of various subjects in commerce, we recommend these books from S. Chand Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. If you found our video interesting, please like, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon.
All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.